Good morning, children. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Okay, all of you are Morning, having. sir. Good morning. All of you are having the geometry box with you. Yes, sir. No reply. Yes, sir. No reply. All of you are having, and you have to Yes, show sir. it because I have kept my diary open. Those who will not show the classroom activity, I will reduce the marks here. Okay, so this is very clear-cut direction from my side. So don't confuse. If you are absent or anything, you will be accountable for that. Okay, now, so first of all, uh, before going into some simulations, again I will repeat the laws by which the incident ray and reflected rays, these two are related. So first of all, what is the first rule? If the incident ray is parallel to the principal axis, It will pass through the focus. yes. Next, if the incident ray is passing through the focus, It will be parallel to the principal axis. okay. Next, if the incident ray is passing through the center of curvature, It will reflect back the same path. okay. And if the incident ray is falling on the pole, it will make an equal angle and reflect back. Huh? Okay. So now I will tell you first of all how to, because ray diagram is generally asked. So here I am following a particular, for examination purpose, we have to follow a particular technique and all the things should be measured beforehand so that we don't face much problem. Now, first of all, what we have to do is we have to draw a principal axis of 4 centimeter and object of 1.5 centimeter. Okay, and this 4 centimeter, in between the 4 centimeter, you should have the focus at 2 centimeter. Finish the work and then you will show me. Giving 2 minutes time. Sir, can you repeat? I have given here, you can see in the screen that you have to draw a line of 4 centimeter and okay, which will be the principal axis, and in this at 2 centimeter you will put a dot which will be the focus. You will draw a line of 4 centimeter and then you will put a point on 2 centimeter. Over.
हो गया? यस सर। अच्छा, अब तुम मुझको ये बताओ, ये जो सीपी है ये स्फीयर का क्या है? जो हाइपोथेटिकल स्फीयर है जिसका ये मिरर एक Radius पार्ट है, of curvature. नहीं, Radius of स्फीयर का curvature. क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ठीक है, तो स्फीयर का क्या है? माने हम एकदम सिंपल वर्ड में आ रहे हैं। जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका वो क्या है? सर रेडियस। रेडियस, करेक्ट। अब तुम तब क्या करोगे? कंपास निकालो, पेंसिल डालो, सी में लाइन रख के अब एक कॉन्केव मिरर इस पर बना लो। हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ ये सी को थोड़ा और एक्सटेंड भी कर लो, सी पॉइंट से थोड़ा और हल्का सा एक्सटेंड कर लो, 1 सेंटीमीटर कम से कम। Sir, done. हो गया। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेढ़ा टेढ़ा लाइन खींचते हैं ना, तो वैसे करके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को तुम बनाओ। हो गया? इसके लिए कोई स्केल यूज नहीं करना, ये हाथ से सीधा बना दोगे। हो गया? सर प्लीज रिपीट। बोल रहे हैं कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेढ़ा टेढ़ा लाइन खींच के ना। तो तुम वो मिरर का पीछे तरफ, ये तो कॉनकेव मिरर है, तो जो दूसरा साइड है उस साइड में तुम टेढ़ा टेढ़ा लाइन खींच के नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर दो। Sir, done. डन। ओके, अब तुम क्या करो, जो सी है उसके बियॉन्ड, माने जो एक्सटेंडेड लाइन है उसमें किसी जगह पर 1.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचो स्ट्रेट, उस पर, उस लाइन पर नॉर्मल। हाँ, और उसका ऊपर पॉइंट में एरो दे दो। सर बियॉन्ड सी पॉइंट देना है। हाँ, बियॉन्ड सी। Sir, done. डन। ओके, वेरी गुड। नाउ हम लोग का जो रूल सिखाए थे 4 पॉइंट्स, उसमें से पहला वाला लेते हैं कि ऊपर से 2 पॉइंट लेंगे, फर्स्ट दो। वन लाइन विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट। तो उसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करो। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसके हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे क्या होना चाहिए? पहले बोल दो। It will pass through the focus. वेरी गुड, इट विल पास थ्रू द फोकस। वेरी गुड, कर दो उसको। Sir, done. Done. Now I will take a second ray from the same point.
तो उसको क्या लेने से मुझे इंटरसेक्शन एकदम सही सही मिलेगा, बताओ, एक अंदाजा बोलो, क्या लेने से Sir, सही सही बनेगा? incident ray from sir incident ray from focus. द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, बस एकदम एकदम ठीक अंदाजा है। इंसिडेंट रे विल पास थ्रू द फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाते जाओ, अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। Yes, sir. यस, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को डॉट देके जो प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो। Yes, sir. मिला दिए। अब ये जो नीचे वाला जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट किया है, वो कौन सा पॉइंट है? वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का टॉप वाला पॉइंट है, क्योंकि हम वहीं से इंसिडेंट रे छोड़े थे। सपोज उस पॉइंट को अगर हम एम बोल रहे हैं और उसका बेस को एन कर रहे हैं, तो एम और एन को मार्क, अगर टॉप एम है ऑब्जेक्ट का और बेस उसका एन है, तो यहां पर भी उस एम डैश और एन डैश को रिप्रेजेंट करो। हुआ? Sir, done. डन। अब इंसिडेंट रे में एरो डालो, रिफ्लेक्टेड रे में एरो डालो। Yes, sir. डाल दिए। डालने के बाद तुम इसको कितना रखे थे लेंथ को, ऑब्जेक्ट का लेंथ को? 1.5 centimeter. ऑब्जेक्ट, अब तुम इसका लेंथ को नापो। कितना हुआ? 0.9 centimeter. 0.9 सेंटीमीटर। अब तुम मुझे ये बताओ, अब नेचर ऑफ, इज इट ए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? Sir, real Sir, image. रियल। व्हाई इट इज रियल? Sir, because intersection of the reflected ray is happening in real life. Really taking place. Intersection of reflected rays are really taking place. When it will be supposed to और मैंने जब सपोज टू करना होगा तब वो वर्चुअल होगा, ये रियल में होगा। अच्छा, पिक्चर जो है वो स्ट्रेट है ना इन्वर्टेड है? स्ट्रेट माने सीधा, इन्वर्टेड माने उल्टा। Sir, inverted. जो इमेज है दैट इज स्ट्रेट और इन्वर्टेड, डायरेक्ट Sir, और इन्वर्टेड, inverted. स्ट्रेट inverted. It is larger in size than the object or smaller in size than the object? Smaller in size. Smaller of the object. तो इसका टेक्निक सीख गए, तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। अब तुम मुझे एक करके बताओगे, वो होगा द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, सेम लेंथ वेंथ चेंज नहीं करोगे, एकदम 2 मिनट टाइम में खत्म होना चाहिए, मैं उसी लिए सब फिक्स कर दिया। The object is placed between C and F. Time starts now.
सर, हेलो सर। हाँ, सर क्या आप पहले वाला और एक बार रिपीट कर सकते हैं? पहले वाला मतलब पहले वाला का क्या क्या स्टेप बोले थे? यस सर, यस सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का, जिसमें 2 सेंटीमीटर में एक डॉट डालेंगे। उसके बाद कंपास यूज करके एज, और दोनों में पॉइंट दे देंगे सी और टी। तो ये हुआ उस स्फीयर का रेडियस। तो इसलिए सी में कंपास रख के एक चौक बनाएंगे जो हमारा मिरर बन गया। अब हम क्या करेंगे, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मार्क करेंगे, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मार्क कर देंगे लाइन से। अच्छा, उसके बाद हम सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर। एक्सटेंड करने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे 1.5 सेंटीमीटर का। 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का टॉप, जिसका नाम सपोज हम एम रखते हैं और बेस का नाम एन रखते हैं, तो वो जो टॉप में एम है वहां से एक इंसिडेंट रे लेंगे which is parallel to the principal axis, and according to rule after reflection it will come through the focus. फिर एक दूसरा रे लेंगे उसी पॉइंट से, एम से ही, जो कि which will pass through the focus. So after that it will be parallel to the principal axis. Both the reflected rays will intersect at a point. उस पॉइंट को डॉट लगाएंगे और उसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिला देंगे। तो ये हो गया मेरा क्या, इमेज। अब इस इमेज का नेचर हम स्टडी करेंगे। इन्वर्टेड हो गया, साइज में छोटा हो गया, ठीक है। पोजीशन क्या हुआ, इन बिटवीन कहां कहां होगा, इन बिटवीन सी एंड एफ। सर हुआ सर डन। डन। कहां पर बना, अब उसका नेचर लिखो, नेचर ऑफ द इमेज को लिखो। मैं अब बंद करूंगा, उसके बाद देखूंगा, उसके बाद आऊंगा। सर हाँ, सर असुविधा हाइट होने ऑफ से बोलो, ऑब्जेक्ट, ये जानना ही है हम लोग को। सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर होगा क्या? ऑब्जेक्ट को 1.5 सेंटीमीटर रखो, ओके सर। एकदम फिक्स 1.5। ये मैं कर करके देखता हूँ, इसी पॉलिसी पर रहे हैं, तो मेरे लिए ये सुविधा होता है थोड़ा। मेरे लिए नहीं, बच्चा लोग की ये सब करके दिखाया है एक्चुअली। इस हाइट में लेने से सर परीक्षा का हॉल में गड़बड़ी नहीं होता है। शुरू में क्या होता है, बच्चा लोग बड़ा कर देता था साइज में। अब बड़ा जब कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो मुश्किल हो जाता है। हो गया, तुम लोग बनाए? यस सर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बाबू, जो बनाने दिए थे? इन बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ। इमेज कहां बना? सर बियॉन्ड सर बियॉन्ड सी। तुम्हारे सामने में जो सिमुलेशन है उसमें दिख रहा है? यस सर। अब देखो, Yes, इसको sir. तुमको समझने के लिए ये पढ़ने का सुविधा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ।
जैसे सर। जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है सर एक डाउट है, towards- हाँ, एक डाउट है सर। एक मिनट बोल रहे हैं तुमको। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। उसके बाद और नजदीक आया तो क्या हो गया? बोलो सर यार। अब सर इसके बाद वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। बस यही चीज दिखाना था। तुम देखो, इसको पीछे ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, सी में गया। सी में क्या हो रहा है? सर जब सेम सी में साइज का रखते हैं, इमेज हो रहा है। इमेज कैसा हो रहा है? सर सेम साइज, Same रियल एंड size इन्वर्टेड एंड सेम साइज का। इन्वर्टेड एंड सेम साइज। आप बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? सर जो आपने रे डायग्राम अभी ड्रॉ करने के लिए दिया था, सर जब हाँ मैं हाँ, फर्स्ट रे और थर्ड रे को यूज करके बना रही हूँ तो सर एकदम परफेक्ट बन रहा है, लेकिन सर जब फर्स्ट रे और सेकंड रे को यूज करके बना रही हूँ तो सर वो बिटवीन सी एंड एफ ही बन रहा है। देखो एक चीज तुमको और बता दे रहे हैं। तुम अभी करके तुम्हारा माने झमेला तुमको पकड़ में आ जाएगा। तुम सी में बनाओ, देखो तुम्हारा गलती कैसे निकलता है। तुम जिसको यूज करके बनाना है बनाओ, परफेक्ट किसमें बनता है बनाओ। ओके सर। तुम कोई भी यूज करो, 0.1, 0.3, 0.1, 0.2। तुम अब खाली ये सी वाला करके देखो। ये बच्चा लोग सबसे ज्यादा मैंने कंप्लेन करता है, इसका सर नहीं हो रहा है बोल के। अगर सी वाला तुम्हारा फर्स्ट एंड थर्ड से हो गया, तब तुम्हारा ये पॉलिसी हम चला देंगे परमानेंटली। The object is placed at center of curvature। किसका किसका हो गया? अब देखना शुरू करूंगा मैं। Sir, done. इसका हो गया, चैट में लिख दो। मैं वो, और कैमरा ऑन कर दो, और कॉपी को कैमरा के इसके सामने पकड़ो। डन तो फिर दिखाओ, कैमरा खोल कर दिखाओ, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, अपलोड करो या कुछ करो। कैसे करके दिखाना है तुमको, अभी नंबर दूंगा। और थोड़ा क्लियर करो, सौहार्द। मेरे को तुम्हारा चेहरा नहीं, हमको कॉपी दिख नहीं रहा है प्रॉपर। रुको एक मिनट, इसको बढ़ाने का कोई उपाय है कि नहीं? हाँ हाँ, ये वाला है तुम्हारा सी, ये है बिटवीन सी एंड एफ, साइज में बड़ा। सौहार्द हाजरा हो गया, नंबर मिल गया, हटा लो। नेक्स्ट, करना सबको है। जो नहीं करेगा, तीसरी पार्टिसिपेंट है आज, तो जो नहीं करेगा वो भोग में गया। हमको कुछ मत बोलो। और किसका हो गया? एक तो दिखा दो, नंबर तो ले जाओ भाई। जो डन मत बोलो, सीधा दिखाते जाओ और नाम बोलो, मैं लिखते जाऊंगा। कोई हड़बड़ नहीं करेंगे, एकदम प्यार से चलेंगे। हाँ, कॉपी। और अच्छा रुको एक मिनट। गया बिटवीन सी एंड, ओके। ये क्या है? अरुणिमा गोराई, ठीक है, हटा लो। बस 2 ही जन को नंबर मिलेगा। अरे डन मत, यू जस्ट शो मी एंड टेल योर नेम।
यस सर, सर कनिष्क विदेशी। तुम कैमरा खोलने से ही दिखेगा ना मेरे को। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, सादा। हाँ, अब हुआ। हाँ, ओके। ये है कौन? कनिष्क। सर कनिष्क। ओवर, एकदम करेक्ट। हटा लो। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज कनिष्क याद रखो, तुम पूरा गोला नहीं बना सकते हो, तुमको खाली एक साइड में बनाना है, ठीक है ना? ओके सर। सर you said that Sir, done using compass. Sir you said that using compass I have to हाँ, कंपास से make the हम hole. क्या बोले, चॉप लेने के लिए एक साइड में करना है। ओके सर, सॉरी सर। ओके सर। नेक्स्ट और कोई है ना? आगे बढ़े, बस Sir, खत्म done. कर देते हैं। कितना बचा हो? 1 2 3 Sir, 3 को done. 10 में 10। और कौन है? कैमरा ऑन करो Sir, तभी समझ में आएगा ये कौन है। Sir, DDT. अच्छा रुको, हाँ एकदम ठीक। दीदी मॉल हो गया, जाओ। नेक्स्ट, अस्मित चौधरी। रुको, कैमरा ये कॉपी। अस्मित चौधरी, एरो सब दिया है, ये किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट। ये लड़का बच्चा लग रहा है, खेल करने में जाएगा बहुत सारा। मैं 1 2 का तो अभी टाइट करूंगा, चिट्ठी भेजूंगा घर में। आज सोचा था स्कूल सर जाऊंगा, मेरा पर देखिए। दिखाओ रे, कहाँ? मेरे को तो दिख नहीं रहा है रे। सर मैं दिखा रही हूँ। हाँ। अनु कुमारी, एकदम ठीक है। इसका लाइन नहीं दिख रहा है, इसका A2, ये जो पॉइंट है ना, जैसे ए और इसको नीचे भी तुमको नाम देना है, AB करो ना, और ये जो एरो दिए हो, ये एरो को तुमको टॉप में देना है, जहां A लिखे हो वहीं पर एरो देना है। आया बात समझ में? और इसको जो लाइन, इसको एक लाइन से, इमेज को एक लाइन से जोड़ना है, और ये टॉप को A देना, A डैश कर दोगे क्योंकि ये अलग हो गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा A डैश। ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके उसको सर। थोड़ा ठीक कर लो। अनु कुमारी, अनु कुमारी, तुम टीचमेंट में अगर फोन नंबर चेंज किए हो ना, तुम पिछले दिन क्लास में थे तो, यस सर। किंतु तुम्हारा अटेंडेंस में नाम नहीं है। मुझे जो लग रहा है Actually, तुम जो, हाँ बोलो। एक्चुअली सर, मतलब मेरी दीदी का भी क्लास शुरू हो गया है, सो सर उसका मॉर्निंग में होता है ट्यूशन का क्लासेस, तो दैट्स सर आई हैव जॉइन टू माय फादर्स फोन। तो जो टाइम सबको एडजस्ट करके रखो, क्योंकि मैं तुमको क्लास में देखा उधर, इसमें अटेंडेंस जब चेक करने गया तो तुम्हारा नाम नहीं। मुझे तब बता देना जो लोग दूसरा फोन यूज कर रहे हो ना, क्योंकि मैं काट छाट के सब एकदम फिक्स कर दिया मैंने नंबर को, नहीं तो हिसाब 56-58 हो गया था। तो मैं कल बैठ के सब काटा। सुमेरा इस्माइल, जैसे आज एक नया नंबर से एंटर किए हो। सर लेकिन मैं कभी और एब्सेंट किसका है? नहीं हूँ क्लास में। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। भगवान तुम्हारा भला करे, आशीर्वाद है मेरा, अगर देने का ताकत है तो। नेक्स्ट, देखिए कौन है रे? हाँ, ये क्या है? अंगिता, कॉपी दिखाओ। अरे वाह, क्या हो गया रे? गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तुम जबरदस्ती मिला दिए, जबरदस्ती। कैसे हो गया? तुम ए कहाँ लिखे हो? दूसरा बात,
इफ गलती क्यों हुआ, तुम्हारा जो लाइन है स्ट्रेट नहीं लग रहा है। पहले जो तुम लाइन खींचे हो ऑब्जेक्ट का, उसको एक स्ट्रेट लाइन में खींचो। कहाँ कहाँ गलती हुआ मैं बता दे रहा हूँ, नंबर दे दूंगा। ये वाला जो जगह है ना, ये तुमको स्ट्रेट खींचना है। उसके बाद यहाँ से तुमको स्ट्रेट गया, रिफ्लेक्टेड रे जो है उसमें एरो नहीं है। उसके बाद इससे तुम दूसरा एक रे लो, ठीक है, तुम ठीक है कोई बात नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाए हो, तो इसका एक तरफ एरो है, दूसरा तरफ एरो नहीं है, इसलिए इसमें नंबर कट जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, इसका तुम एरो का मूव कर दिए हो नीचे तरफ। तुम ए पॉइंट से लेकर जब चल रहे हो तो ये ए हुआ, तो ए होने से इसका जो एरो है ए में रहेगा, और इसको 3, अच्छा ये वाला बढ़ गया 3.5 सेंटीमीटर और ये वाला 1.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और एक बार करके देखो। अच्छा, दूसरा क्या किया हो, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पीछे तरफ में ना दागी दागी देना चाहिए, वो नहीं दिए हो। एक बार किताब के साथ मिलाओ। ओके, थैंक यू सर। ओके, क्या नाम क्या है रे तेरा? अंगिता। सर। हाँ, कौन है सर जो थर्ड वाला, सर अरुणिमा सर बोल रहे हैं सर, जो थर्ड वाला था सर वो हो गया। वेरी गुड, दिखा दो, तुमको और ज्यादा नंबर देंगे। नो सर, उसके लिए नहीं सर। थर्ड कौन सा था? नहीं सर, नंबर के लिए नहीं। अरे बहुत सारा है उसमें, बहुत सारा है। और कोई दिखाएगा? नहीं तो हम छोड़ देते हैं अब। सर पायल कुमारी दिखा दो, हम बंद करेंगे अब इसको। ये आदत डालो, क्योंकि साइंस क्लास में नहीं तो मुश्किल होगा रे भाई। और थोड़ा, अच्छा एक सॉरी, मेरा ही गलती है। 2 लाइन गया, 1 लाइन गया, इधर जाके मिला। मैग्निफाइड इमेज, इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी, रियल इमेज, बहुत कुछ सीख गए। वेरी गुड पायल कुमार, हो गया। सर ये मेरा सर आलोक रॉय है ये सर। कहाँ रे सर? देखिए नहीं दिख रहा है कहीं दूर दूर तक। अरे रुको रे, दिख नहीं रहा है तो आलोक राय। तुम कैमरा ऑन करने से तब मेरे को समझ में आएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आलोक राय, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑब्जेक्ट में नाम नहीं दिए हो, इमेज में नाम दिए हो। अच्छा, फिर तुम्हारा मिरर हाथ से बनाए हो क्या? यस सर, वो नहीं बना सर, सेकंड में बना। तुम्हारा शेप तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, एरो में उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं। फिर दूसरा का एरो देखो आलोक राय, तुम टिप से स्टार्ट नहीं किया है। इसका जो टिप है ना, तुम इतना इसको रंगीन बनाने का चक्कर में उसका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट गड़बड़ हो गया है, फोर्सिबली मिला दिया इसको। ओके सर, देखो एक बार किताब का डायग्राम के साथ देखो, तुम्हारा जो सेकंड वाला जो इंसिडेंट रे है ना, वो वाला ठीक जगह से नहीं निकला है। यस सर, यस। ओके, और नेचर ऑफ द इमेज को नीचे लिख के रखो। और हमेशा बहुत जन हाथ से बनाता है, किंतु हाथ से दया करके मत बनाओ, एकदम कंपास ये यूज करो। ठीक है, हो गया तुम्हारा आलोक राय, 9 नंबर आलोक राय। सर क्या नाम? और कोई है? सर हाँ सर, नाम बोलो। सर मैं मृतिका। मेरे को रुको कैमरा घुमाना नहीं आता यहाँ पे। नहीं रहा। हाँ, एंजो, हाँ मृतिका। हाँ, एक इंसिडेंट रे में एरो नहीं है, गलती नंबर 1 हो गया। दूसरा इंसिडेंट में एरो है, रिफ्लेक्टेड रे में एरो है। इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ गया? ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, हाँ? ओ, ये क्या गलती किए हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ काट दिए हो, इसको समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आया है। ओके मृतिका, मैं नंबर दे रहा हूं बट तुमको समझ में नहीं आया।
ओके, और एक जन दिखा देने सर और एक बार ट्राई करूं? सर सर एक बार ट्राई करूं? सर मैं हाँ सर अरे हाँ बोलो ना, कौन है, मेरे को दिखाई देना से। सर और एक बार ट्राई करूं? बोलो श्री घोष। सर मेरा दिख रहा है ना रे भाई रुक। सर साइंस। हाँ अब रुको, तुम अपने को मत दिखाओ। सर और दिख रहा है? नहीं, लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ तुम लोग हाथ से बना है और थोड़ा बहुत ज्यादा चमक रहा है। ये सब थोड़ा पहले से सेटिंग करके रखो। लाइट तो कम करो थोड़ा। वो मैं लाइट बंद कर दूंगा। इस तरफ लाओ, इस तरफ। सर थोड़ा पेंसिल थोड़ा लाइट। फोकस नहीं है, फोकस नहीं है। और थोड़ा इधर उधर करने से समझ में आएगा। और आगे करो। साफ नहीं हो रहा, और थोड़ा डार्क करना होगा। और फिर तुम हाथ से किया है लग रहा है। और मुझे मिरर का जो लाइन है ना वो भी दिख नहीं रहा है। मिरर का लाइन डार्क कर देता हूँ। एक बार और करो 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 इसको। ये गलती और एक बार करो। तेरा ये मिल रहा है किंतु जो हाँ पेंसिल ओके, तेरा जो इंसिडेंट रे है फर्स्ट वाला वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब हाथ से खींचा है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये दूसरा वाला फोकस। हाँ तेरा कॉन्सेप्चुअली ठीक है। और पीछे तरफ जो ये लाइन खींचा है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद ये एरो को ऑब्जेक्ट का एरो को ऊपर ले जाना है, ठीक है। और इसका यार ऑब्जेक्ट को नाम देना है। ऊपर में अगर ए लिख रहे हो ऑब्जेक्ट में, नीचे में बी लिखोगे तो इमेज में ए डैश लिखोगे और नीचे में बी डैश लिखोगे। हो गया? गलती समझ में आ गया? यस सर। ठीक करो उसको, पक्का हाथ पक्का करो। क्या नाम है? शायन सिन्हा। यस सर। हो गया? यस सर बस इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता। सर हाँ बोलो। हेलो सर। कौन है? सर कौशाम्बी मेरा दिख रहा है सर? एकदम दिख रहा है लग रहा है। हाँ ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्ट। और जो हाँ तुम्हारा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका ऊपर वाला पॉइंट ए बी। अच्छा बी और क्या लिखे हो? ए। अच्छा ठीक है, बी डैश ए डैश। ठीक है, कौशाम्बी इधर टकराया, इधर से गया। हाँ करेक्ट। किंतु थोड़ा इमेज के बारे में भी लिख लो तो सीख जाओगे। कौशाम्बी 12 नंबर। ओके सर। सर ईमन डन। कौन है? ईमन सर। कहाँ दिख गया? अच्छा हम लोग साफ नहीं हो रहा है। क्या है? ए से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इधर आके मिला, ए डैश हुआ, इधर से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ठीक है, सब टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा हो रहा है। स्केल का काम पक्का नहीं है। तुम्हारा मिरर को हाथ से क्यों बनाया रे? मैं तो सब नाप झोप बोल दिया तुम लोग को, तब गड़बड़ क्यों करते हो? मेरा सी दिख नहीं रहा है। कंपास से बनाया है सर, कंपास से बनाया। वो थोड़ा नीचे का पोछना पड़ा था तो ऊपर का। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम एफ और सी, जहां पर एफ लिखना चाहिए वहां पर तुम सी लिख दिया है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट में तुमको लिखना चाहिए एफ, ठीक है, कैपिटल एफ। और इधर होना चाहिए सी, माने जो रेडियस तो है सर्कल का। तो तुम्हारा वो सी गायब है। हुआ? गलती समझ में आया तो मेरा काम है बता देना। अब तुम करोगे नहीं करोगे तुम्हारा बात है। ईमानता थी 13 नंबर। हो गया? और कोई? सर
सर विद्या दत्ता सर दिख रहा है? रुको रुको, नहीं दिख रहा है अभी, एक मिनट। हाँ हाँ रुको, मैं ये मेरा स्क्रीन में नहीं है। लाइन हुआ, तुम लोग हाथ से सब बहुत कुछ कर रहे हो। ये देखो तुम्हारा इंसिडेंट रे का मेन लाइन से कितना डिफरेंस जा रहा है भाई। ये लाइन सीधा खींचो, इंसिडेंट रे सॉरी ऑब्जेक्ट को एक सीधा लाइन में, ये 1.5 सेंटीमीटर का आदो है कि नहीं, मेरे को डाउट है। 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, और हाथ से खींचे हो गया है, बट इसको थोड़ा ठीक करो। ओके, क्या नाम है? सर विद्या दत्ता। सर तनीषा। जी तनीषा, बोलो कहाँ है? कहाँ है तनीषा? तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं रहने से मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। सर एक मिनट सर। हाँ सर दिख रहा है सर? हाँ रुको, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। पहला बात है पेंसिल बी करो, पेंसिल खरीद के लाने बोलो, बहुत लाइट है पेंसिल। बाप रे बाप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा रे, इतना लाइट बना है ना। अच्छा और थोड़ा सा देखो, नजदीक करो, और तुम साइड ठीक करो। मैंने उल्टा दिखा रहे हो मेरे को, पकड़ में नहीं आएगा। साइड में करो, साइड में करो। हाँ हाँ, एक कोई साइड में ले जाओ, उल्टा या सीधा, किधर कॉपीटो को घुमाओ थोड़ा। नहीं समझ, ये है मेरे को उल्टा हो जा रहा है एक्चुअली। हाँ अब ठीक है, अब ठीक। ये हुआ, हाँ अब ठीक है। रुको, ये हुआ तुम्हारा ये डैश 1.5 सेंटीमीटर का, इधर से गया। देखो तुम्हारा नंबर कहाँ 0 कर देंगे, ये जो तुम एरो नहीं दिए हो ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, यही गया इन द भोग ऑफ माँ, पूरा चला गया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एरो देना है, ऑब्जेक्ट में भी एरो दे रहा है, इसमें भी एरो देना है। ये चीज में टोटल खेल है एरो का। एरो नहीं मतलब सीधा 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? इंसिडेंट रे का एरो, रिफ्लेक्टेड रे का एरो, इसका ऑब्जेक्ट का एरो, उसके बाद इमेज का एरो, इतना सारा एरो तुम्हारा इस डायग्राम में नहीं है। रेस्ट सब ठीक है। ओके, थैंक यू तनीषा। हो गया 15 बच्चा, और ज्यादा बच्चा को नंबर नहीं देना। तनीषा खत्म। हाँ और कौन है? आयुषी प्रधान। कौन दिसुनी बा मोते आउ टिके लाइट बहुत जोर पड़ुची से जाएगा रे, दिसुनी किछि। आउ टिके ऊपर 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 करो, ऊपर टारे पेन फेन सब अछि। इट्स वेरी स्मॉल। वेट नाउ, वेट वेट, आउट ऑफ फोकस। थोड़ा पीछे जाओ या आगे आओ थोड़ा। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। अच्छा, तुम्हारा गया इंसिडेंट रे, सब हाथ से किए हो लग रहा है। इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे में एरो नहीं है। उसके बाद फिर अगला वाला इंसिडेंट रे विच इज गोइंग थ्रू द फोकस, एरो नहीं है। अच्छा, उसका मुझको ये दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ इंटरसेक्ट। ये जिस पॉइंट में वो इंसिडेंट होगा मिरर में, उसी पॉइंट से वो रे निकलेगा। तुम उसके बाद से कैसे निकाल सकते हो? जिस पॉइंट में ये इंसिडेंट रे आके मिरर में गिरेगा उसके स्ट्रेट में जाएगा ना, तुम उसका बाद में कैसे स्ट्रेट करके एक मिला दिए हो? गलती समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जिस पॉइंट में वो इंसिडेंट हुआ उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। ठीक करो, और एरो दो, एरो दो। मैं ये एरो वाला का झमेला कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, थैंक यू। 16 आयुषी प्रधान। सर सर
कौन है रे? सर मेरा इस तरफ स्वस्तिका। है। स्वस्तिका, हाँ दिखाओ। ये तो स्नेहा राय दिख रही है। हाँ स्वस्तिका, सर हाँ हाँ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। वेरी गुड। वेट, गलती बोल देता हूँ। नंबर 1 गलती, ऑब्जेक्ट के टॉप में एक एरो रहना चाहिए, ए के पास नहीं है। दूसरा, एरो ऑफ द इंसिडेंट रे नहीं है। दूसरा, ये हो गया, इसका एरो एर है। अच्छा, ठीक है। और ए डैश बी डैश, इमेज को हमेशा अलग लिखना है, इसलिए वो होगा ए डैश बी डैश। वेरी गुड। चलो स्वस्तिका। हो गया। स्नेहा राय को क्या हुआ? सर सर हाँ एक सर मिनट, ये कनिष्क कौन है? प्रियदर्शी ये कौन है? सर कनिष्क प्रियदर्शी। स्नेहा राय showing दिखा once दिए? again, स्नेहा sir. राय दिखा दिए तो? नहीं, एक मिनट, ये खोल दिया हूँ। स्नेहा राय खोलो, स्नेहा राय खोलो। कैमरा ऑन करो। हाँ, एक मिनट देख रहा हूँ, ये खत्म कर देता हूँ। ओके सर। ये बी के पास जो एरो होना चाहिए नहीं है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और तुम्हारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, हाथ से बनाया हुआ है, लग रहा नो है। सर, नो सर, नो सर, सर नहीं, सेम है तुम्हारा सर। नहीं बोल लास्ट रहा टाइम है, वाला ये सेम कौन है। है? स्नेहा राय। ओके सर। अच्छा, दूसरा है, ये तुम्हारा जो इमेज है उसका ए डैश बी डैश लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। स्नेहा राय हटा लो। हाँ, कौन बोल रहा था? नेक्स्ट सर मी सर, 1 सेकंड सर, कनिष्क प्रियदर्शी। अच्छा हाँ, तुम तो एक बार दिखा था। ये सर हाँ सर ठीक है, एक्चुअली सर होल ठीक है। सर। हाँ, ये आधा आ गया, ये आधा आ गया। एक ऐसे ही चीज, एक चीज और, थोड़ा पेंसिल थोड़ा ज्यादा हो गया है, मोटा। कब फंसोगे हम बता दे रहे हैं। जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जब देगा ना पॉइंट को, तब तुम्हारा मैंने एकदम उसका तो एकदम नहीं बनना चाहिए, उस समय तुम फंस सकते। ओके सर। ओके, 42 हो गया। धन्यवाद। मेरा क्लास है, इसके बाद तैयारी करना है। टाइम हो गया तो हाँ सर। ओके सर और सर, इसको आपसे कोई होमवर्क doubt है में सर? आज दे देते हैं। सुनो, इसको होमवर्क में मैं अपलोड कर देता हूँ। जिन लोग का हो गया उन लोग का नंबर मैं बैठा दूंगा, और जिन लोग का नहीं हुआ है उन लोग को खत्म कर देना है। और होमवर्क क्लास सर वो वर्क आप थर्ड लोग वाला अपलोड थोड़ा कर, दिखाना था। अभी और मत दिखाओ, अपलोड कर दो, मैं चेक कर दूंगा। ओके सर। कितना है आप अपलोड कर दो, मैं अभी दे दे रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो ना। हाँ सर कल मैं बुक में पढ़ रहा था कि सर एक लॉ है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है सर, पर सर जब रफ सरफेस में ये गिरता है तो सर ये तो तब इक्वल नहीं हो सकता सर। क्या इसका मतलब तो लॉ सर गलत है। नहीं, क्या लॉ तो गलत नहीं है। हाँ बोलो। सर मतलब सर जब रफ सरफेस में गिरता है कि तब मेरे को सर सुनाई वो नहीं तो- दे रहा, वो जो बीच में, हाँ तुम क्या बीच में बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। सर जो रफ सरफेस में जब गिरता है ना सर, जब लाइट गिरता है तो सर वो तो तब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर दोनों तो अलग अलग है। जब किस सरफेस में बोल रहे हो? रफ सरफेस। रफ। यस अच्छा सर। अच्छा, एक मिनट। देखते हैं इसमें तुमको समझाने सकते हैं कि नहीं। इसको देकर ही मैं खत्म करूंगा। ये हुआ रफ सरफेस, ये एक इंसिडेंट रे हुआ, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये उसका
तुम इसमें एक चीज देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दोनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो इसलिए तुमको जो लग रहा है कि लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, वैसा नहीं है। ये जो आ रहा है इंसिडेंट रे और इसका रिफ्लेक्टेड रे, ये जिस पॉइंट का बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के अनुपात में तुमको सोचना है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है या नहीं। मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है कि नहीं? हाँ सर। तो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो जहां पर हम नॉर्मल ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं, उसका जहां पर नॉर्मल खींच रहे वहीं से ना नापेंगे। हाँ सर। जबरदस्ती मत बोलो हाँ सर, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब जगह में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो अलग हो गया ना, ये दोनों पॉइंट तो अलग अलग है। हाँ सर, अलग है। हाँ बोलो, तुम्हारे मन में जो आ रहा है बोलो उस बात को। दोनों अलग है, तो अगर दोनों अलग है तो दोनों का एंगल भी क्या होगा, अलग अलग होगा, अगर अलग अलग तरह से लाइट आ रहा है। किंतु हाँ सर, अलग इधर जो एंगल होगा इधर भी वही एंगल होगा। अब तुम यहां पर बोलोगे तो यहां पर ऐसे करके जाएगा, तो ये सब तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। हुआ कि नहीं? यस सर। क्योंकि तुमको एक लाइन अच्छी तरह से याद रखना होगा, हम लोग बहुत समय छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये तीनों, इसके लिए ये तीनों एक प्लेन में है, इसके लिए ये तीनों एक प्लेन में है, इसके लिए ये तीनों एक प्लेन में है। इसका और इसका प्लेन एक होगा कोई जरूरी नहीं है, माने ए का प्लान और बी का प्लान सेम होगा, सी का प्लान सेम होगा, कोई जरूरी नहीं है। हुआ? मेरा बात समझ में आया? तो नहीं है तो बोलो, फिर मैं, मेरे से नहीं समझाने सकेंगे तो फिर किसी दूसरे को बोलेंगे, उसमें क्या है। ओके, so now I am leaving.